brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਿਆਹ, ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ, ਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੇ ਰਾਜ਼। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਾਰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਮਗਨ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਿਵਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀਪਕ। ਮਗਨ ਰੋਹਤਕ ਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਗਨ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 2 ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਗਨ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2021 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 2 ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਵਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਗਨ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਵਿਆ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਗਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਗਨ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨ ਨੇ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਿਵਿਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਗਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਗਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮਗਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਮਗਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਗਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀਪਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਗਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। मैं मगन अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है और वो मेरे से पैसे मांगते हैं और आज बोल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में, और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। और इसका दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसका दबाव भी इन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया, जो कि मैंने 1.5 लाख तो गेहूं बिकते ही दिव्या के पास गया, मैंने तब दे दिए। और 2 लाख रुपए 9 जुलाई को मैंने सुनार को कड़ा रख दिया गिरवी, और 9 तारीख को दिव्या के अकाउंट में डलवाए हैं, और दिव्या ने 9 और 10 तारीख को वो रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, जो हमारे घर कॉपी रखी है और उसमें उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ है, जो उसके दीपक के अकाउंट में कर रखे। और अब 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पापा को भी मार दे, उसके जमीन तेरे नाम आ जाएगी, फिर उसको बेच के यहाँ पे जमीन ले। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों ने। इन दोनों की वजह से ही मैं सुसाइड कर रहा हूँ, और मेरा बच्चा मेरे पापा मम्मी के पास रहना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मेरी मम्मी पापा का बच्चा जा रहा है इस दुनिया से, तो उनका सहारा होना चाहिए। तो मैं रोहतक SHO, बहू थाने SHO और रोहतक SP से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं इनकी वजह से ये सुसाइड कर रहा हूँ, और मेरा मम्मी पापा के आगे पीछे कोई नहीं है। और इसने दिव्या ने पहले शादी कर रखी है मुंबई,
जो कि मेरे को 1.5 साल बाद पता चला, तब ये प्रेग्नेंट थी। तो मैंने वकील से सलाह ली, तो वकील बोला कि अगर हिंदू धर्म में बिना डिवोर्स के शादी कर रखी है तो इसके तेरी बीवी के ऊपर पर्चा होगा, या तू इसको छोड़ दे या जेल चली जाएगी। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। इसके पति से पैसे वहां भी दिए मैंने और सेटलमेंट करके उसको चुप कराया। और इसका एक लड़का है, पहले इसने शादी कर रखी है, अब यह तीसरा ये दीपक है इसके साथ घूम रही है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रशासन से, इसके ऊपर है ना सभी केसों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरे को न्याय दिया जाए। और मैं हरियाणा भाईचारा वाले लोग कुछ दैया और अब मनी मूवीज वाले मोखरा वाले भाई से बोलता हूँ, प्लीज भाई मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर मेरे को इंसाफ दिलाना। एक मेरी बहन है सविता आर्य पानीपत से, जो लड़कियों के लेडीजों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। पर बहन लड़की है ना, गलत होते हुए बेचारा सुबह आके ठीक हो अपने आप को साफ साबित कर सकती है। और आदमी को सही साबित होने के लिए ना अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कभी है ना आदमी के लिए भी कुछ करके देखना बहन। मेरे साथ बहुत गंदा हो रखा है, मैं अपने पापा को नहीं मार सकता इन दोनों की वजह से। तो मेरे को क्या बचा, अब मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। मैं बहु थाने के SHO और रोहतक SP से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और भाई बलराम दांगी व दीपेंद्र हुड्डा, प्लीज भाई मेरे घर आना और मेरे मम्मी पापा के पास ये बात की आश्वासन देना कि इनका जो पोता है वो इन्हीं के पास रहेगा। भैया मैं हाथ जोड़ के बलराम दांगी व दीपेंद्र हुड्डा से भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਮਗਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀਪਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। खुदकुशी ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸਨੇ ਮਗਨ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 18 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਮਗਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਤ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਮਗਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਿਵਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਗਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ कुछ हिस्सा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पेश कर रहे हैं। जो वीडियो आया मगन का आपने भी देखा होगा, उसके बाद आप लोगों को सारी घटना पता चले या फिर मगन पहले भी आप लोगों को कुछ बताता है कि पति पत्नी में इस तरह का तनाव है? नहीं जी, कभी नहीं बताया जिसको, हमारे से तो कभी भी नहीं बताया। सुसाइड किया उस दिन भी सारा दिन काम लग रहा था। शाम में बच्चों के वीडियो बनाने के बाद भी बच्चों के लिए रोहतक से चीज ले आकर दी है खाने की, तो कोई ऐसी वो नहीं दी। उसने जो आपने वीडियो देखा किस तरह के आरोप लगा रहे आपने पूरा उसके बाद? उसमें एक तो बोला उसका कोई प्रेमी है, उसका प्रमोशन होना, उसके लिए 5 लाख रुपया चाहिए। फिर उसमें वो बोल रहा है कि जी 1.5 लाख तुमने गेहूं की फसल बेची, उसमें पहुंचा वहाँ जाके देख आया खुद। और वहाँ से आने के बाद ही भी 9 या 10 तारीख को पैसे निकलवा के खाते में डाले हैं। उन्हें पता नहीं वो खाते का नाम ले रहा है, जो दिव्या के में डाले हैं कि उसके प्रेमी के में डाले हैं, वो तो जीवो। तो वो आपको भी बता रहे जो वीडियो में कि पिता को उसकी हत्या कर दो, उसके पैसे फिर तो प्रॉपर्टी हो गई। वो बोल रही है कि अपने पिताजी की डेथ कर दो, उसको मार दो, जमीन हमारे नाम आ जाएगी, फिर इसको बेच के या बॉम्बे महाराष्ट्र में जमीन खरीद लेंगे। उसके ऊपर दबाव बना रहे थे। आपका तो बेटा चला गया, तो ये जो बात सामने आई है अब क्या चाहते हैं आप? हमें तो ये इंसाफ चाहते हैं, जैसे मेरा लड़का गया, इनको भी फांसी होनी चाहिए दोनों। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ भी सुनो। डोब गांव का हमारे पास सूचना मिली थी 18 तारीख को नाइट को, तो उसमें हम वहाँ भी एक लड़का ने सुसाइड की वो करके वायरल करके कहीं चला गया है। मौके पर गया तो कुछ तलाश करने के बाद पता चला कि इसने खेत में जाके फांसी खा ली है। ठीक है, मौके पर गए थे, डेड बॉडी उतरवा के उसका पोस्टमार्टम करवा दिया था।
और केस दर्ज कर लिया था जी उस संबंध में। तो क्या तथ्य सामने आ रहे हैं अभी तक की जांच में? तथ्य सामने आए उन्हें एक वो है जो मगन है, मृतक मगन जिसने फांसी खाई है, तो उसके घरवाली है दिव्या। उन्हें बताया दिव्या और उसका कोई प्रेम है, ऐसे कोई वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच चल रही है अभी, किस प्रकार की है, क्या है, किस कारण, ये जांच का विषय भी उसमें बाद में ही पता चल पाएगा। अभी तो दिव्या से अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। या उसके प्रेमी के से कॉन्टैक्ट हुई? नहीं, उसके प्रेमी से अभी हमारे पास नंबर है, लेकिन हमने कुछ अपने तौर पे ही फर्स्ट उस पे वो की है भाई। अभी उसका पता है चला है कि वो महाराष्ट्र को पुलिस वगैरह में है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ हमें अभी अपने जो तथ्य हैं ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ वो कर रहे हैं। उसके बाद में हम पहले दिव्या की जानकारी हम अवेलेबल करने लग रहे हैं, जितनी कोशिश होगी। दिव्या का बैकग्राउंड, दिव्या कहाँ की है, दिव्या नारनौंद के पास वहाँ भी गए हैं, उनके घर वालों के साथ क्या है, तो इसके बारे में ये प्रोसीजर जुटा के और उसके अपने जो दीपक नाम बताया है इसने, उससे भी हम पूछताछ करके आगे कार्रवाई अमल में लाएंगे जल्दी। सर, पैसों का कोई लेन देन का मामला बताया जा रहा है? पैसों का लेन देन बताया गया है, जो अभी उसने बोला है सुसाइड के उसमें, अभी 2 लाख पहले 1.5 लाख रुपए मैंने पहले दे दिए थे, 2 लाख रुपए मैंने 9 तारीख को करवाए हैं। तो आज उनके घर वालों ने हमें कॉपी अवेलेबल करवा दी है, दिव्या के अकाउंट की करवाई है और मगन की भी, तो उस पर हम चल रहे हैं। दिव्या के अकाउंट की स्टेटमेंट भी निकलवा ली है अभी हमने, उसको एक बार जांच करके देखेंगे भाई किस तारीख को कितने अकाउंट में पैसे गए हैं, दिव्या के गए हैं, दिव्या से आगे कहाँ गए हैं, या मगन ने कहाँ डलवाए हैं, किस उससे, ये जारी है जी। कंक्लूजन की अगर बात करें तो क्या लगता है कि इस तरीके के क्राइम हो रहा है? देखो जी, अभी जांच जांच चालू है, ये जांच का ही विषय है। आगे जाकर आपको कुछ जैसे भी क्लियर होगा सारी चीज बता दी जाएगी टाइम। आरोपी कब तक गिरफ्तार की जाए? कोशिश जल्द ही है, आज हम सारे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं और अपने स्टेट से बाहर जाने के लिए हमें मंजूरी लेनी होती है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ के धरातल में सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, हम जल्द ही जाके एक टीम गठित करके महाराष्ट्र पहुँच के, और जैसे और जब तक दिव्या के बारे में कुछ अभी तक ना लोकेशन ना कुछ नहीं आई है, पहले हम ये सोच रहे हैं अभी दिव्या के बारे में पता चल जाएगी, दिव्या से ही आगे सारी चीज चलेगी। दिव्या के परिवार से भी आप मिले हैं? दिव्या के परिवार में उन्होंने बता दिया, जब से शादी की है इसने, मगन के साथ शादी की थी, लव मैरिज प्रेम विवाह किया था, उसके बाद में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने वो कह दिया, बोल दिया कि हमने निष्कासित कर दी थी, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, ना हम गए हैं ना आए। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਲੇ ਡਰਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।